Yes, good afternoon, students. Am I audible? Yes, sir. Good afternoon. Okay. Okay. I'm waiting for some students to join so that I can continue the lesson. Okay. So as far as your power plant is concerned, so far we have covered almost your 95% syllabus. Okay. 90% syllabus we have covered now. In unit 4, we have covered your hydroelectric power plants, classification, layout, components, principles of wind and tidal, solar PV and solar thermal we have covered, biogas we have covered. Now two topics are remaining, that is geothermal and fuel cell power systems. So today we will be covering both the topics, your geothermal as well as cell power systems. Okay, then we will be left with only unit 5. Okay, so unit 5 has some miscellaneous topics, most of which we have covered in our unit 4s, all 4 units including. Okay, some part in unit 1, some part in unit 2, some part in unit 3, and some part in unit 4. Just we have to revise all these things in a proper sequence. For example, अगर देखें हम the pollution control techniques including waste disposal portions of coal and nuclear. So these we have covered itself. Regarding the waste disposal in coal, we have discussed about the ash handling जो हमने पढ़ा था. That was the waste of the coal power plant. न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर में भी हम पढ़ चुके थे how to handle your radioactive waste. Okay, energy you know, economics and environmental issues क्या हैं, we will be looking into that. Power tariffs, load distribution parameters, load curves, capital and operating cost of different power plants. Okay, so few topics are there which need a special attention. बाकी हम cover कर चुके हैं. Okay, getting my point? If you have any problem so far, you can ask me. You have any doubt regarding the syllabus, any topic you want explanation? Yes, anyone?
Shall we continue? Yes, sir. Okay. Screen is visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Visible. ठीक. So before starting this topic, geothermal energy, I want to ask one question. What do you mean by geothermal? Geothermal. Anyone? Hint is given it. आपको पिक्चर दिख रही है. You can take hint from this picture and then answer my question. सर अर्थ के क्रस्ट से जो एनर्जी मिलती है. Yes. Geo means Yes, earth sir. and thermal means heat. The geothermal, the heat that is from the earth, and we are utilizing that energy. It's an energy. Heat is also a form of energy. ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में ही कि हीट इज एनर्जी. और वो फ्लो कैसे करती है? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन. व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस टू बॉडीज के अंदर होगा, देयर विल बी हीट फ्लो. द मोर द टेम्परेचर डिफरेंस, द हायर विल बी द हीट फ्लो. ये तो होता है. होता क्या है? सर्दियों में आप ग्लास को पकड़ते हो, आपको ग्लास ठंडा लगता है, बहुत ज्यादा ठंडा लगता है. लेकिन आप गर्मियों में उसको पकड़ोगे तो आपको गर्म लगता है. दोनों में फर्क क्या है? बिकॉज सर्दियों में जो आपका इन्वायरमेंट टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 5 to 4 डिग्री सेल्सियस रहता है. और अब जब अपना हाथ उसके ऊपर रखते हो तो 36 पॉइंट कुछ आपका बॉडी का टेम्परेचर है. तो टेम्परेचर वेरिएशन देखो, रफली 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, उसकी वजह से जो आपकी हीट थी वो लॉस हो रही थी. कहाँ पे? उस ग्लास को गर्म करने में, स्टील ग्लास को गर्म करने में. सो बिकॉज ऑफ दैट हीट ट्रांसफर आपको ठंड लगती है, बिकॉज आपकी बॉडी से हीट चली गई. एंड द रिवर्स हैपन्स इन समर्स. ग्लास होता है गर्म, 45-48 डिग्रीज गर्म होगा. आप उसको छूओगे, हीट इज कमिंग टू योर बॉडी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस. बिकॉज आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आइसोथर्मल है. बॉडी मेंटेन रखती है अपनी बॉडी टेम्परेचर को. यू नो दैट. सो अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन करूं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में, तो ये किस तरह की एनर्जी आप इसको मानेंगे? यस. अर्थ की जो क्रस्ट का टेम्परेचर है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से इतना ही है, बढ़ रहा है, उतना कम नहीं हुआ है. और वो आगे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इतना ही रहेगा. तो जो हम बात करते हैं इतने लंबे पीरियड की, तो उसको हम रिन्यूएबल कंसिडर कर सकते हैं. यस और नो? Yes, sir. सो इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन जियोथर्मल रिजर्वायर्स पढ़ेंगे, देन वी एक्सट्रैक्शन एंड यूजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कॉस्ट क्या होगी, जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया, प्रोज एंड कॉन्स एंड कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन की बात मैं करूं तो व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? तो इट इज अ सिंपली हीट एनर्जी ऑफ द अर्थ जनरेटेड बाय वेरियस प्रोसेसेस. So it is simply the heat energy of the earth generated by the various natural processes such as first point is the heat from when the planet formed an accredite which has not been yet lost. दूसरा, decay of radioactive materials, and third one is friction. So these are the three factors because of which there is a very hot core in the earth. जो आपकी अर्थ है, अगर मैं क्रॉस सेक्शन लूं अर्थ का, तो ये आपका टोपोस्फेयर है, ठीक है, जहां पे आप रहते हैं, लैंड एरिया. उसके आप जैसे 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 नीचे जाएंगे सेंटर में, द टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग. So you can see the temperature is 2000, 4000, 5000, 6000.
सो इतना ह्यूज टेम्परेचर आपकी अर्थ के क्रस्ट में है, क्या हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते? यस, वी कैन यूटिलाइज इट। लेकिन ये टेम्परेचर बिकॉज ऑफ क्या कारण है ये टेम्परेचर आने का यहाँ पे? तो तीन रीजंस है। पहला, जब अर्थ बनी थी तब ये इतना बहुत ज्यादा हॉट जो था, एक बॉल थी, वो ऊपर से कूल हो गई लेकिन उसके इंटीरियर अभी भी हॉट है। दूसरा, बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जो है कोर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो वो कंसंट्रेट रहती है यहाँ पे, उसकी वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। एंड थर्ड वन इज योर फ्रिक्शन। नाउ जियोथर्मल रिजर्वायर्स की अगर हम बात करें तो पिक्चर्स में आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे जैसे ये एक सोना टाइप में है, द हॉट वाटर इज कमिंग आउट। ठीक है, जैसे आपके सूरज कुंड में था। एंड दिस इज योर वोल्केनिक इरप्शन जैसे होता है। दिस इज योर बॉइलिंग मड पॉट। सो रिजर्वायर्स कैन बी okay, sorry for that disruption. Okay, so reservoirs can be suspected in the areas where we find first your geysers, your boiling mud pots, volcano and hot springs. Okay, now geothermal reservoir जो कैसे बन रहा है? okay, that is, सबसे देखो यहाँ पे जो पानी है, because of the rain the water seeps into your soil, porous होती है सॉइल्स, कहीं क्रैक्स हैं कहीं है, वो नीचे जाता है। एंड जैसे 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 नीचे जाता रहता है क्लोज टू द कोर, द टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग। एंड जैसे ही वो वहाँ हॉट रॉक्स जो उसके कांटेक्ट में है लावा के, वो भी हीट अप होते हैं। एंड जब पानी उनके कांटेक्ट में आता है, इट टर्न्स इनटू हॉट वाटर। स्टीम नहीं बना बिकॉज ऑफ प्रेशर, इतना हाई प्रेशर होता है। प्रेशर देखो, हमने सबसे पहले जब हम पढ़ते थे आपकी रैंकाइन साइकिल, तो उसमें पढ़ते थे जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, बॉइलिंग का जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहता है। सो बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर बॉइलिंग does not start, water becomes hot, very hot, more than 100 150 180 डिग्री तक हॉट हो जाता है। एंड जैसे ही यहाँ से सीप्स के थ्रू जो इसमें क्रैक्स है वहां से निकलता है ना, और जैसे एटमॉस्फेयर में आता है, इट सडनली कन्वर्ट्स इनटू स्टीम, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर कम हो गया एंड टेम्परेचर उसका ज्यादा है। So the rising hot water and the steam is trapped in the permeable and porous rocks to form a geothermal reservoir, and the reservoir can be discovered by पहला टेस्टिंग द सॉइल। दूसरा मेथड क्या है? एनालाइजिंग द अंडरग्राउंड टेम्परेचर्स। वी कैन मेजर द टेम्परेचर्स ऑफ certain regions that are located near the volcanic activities, and we can judge the where is the suitable geothermal reservoirs is located or available, so that we can harness this energy and utilize it for our needs. Okay, now coming to the extraction and the uses, the heat energy can be brought to the earth surface by following methods. First, डायरेक्टली फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स, जैसे मैंने बताया, मैं जो वहां पे आया, कांटेक्ट में आया, इतना प्रेशर हुआ, कोर्स से निकल के जहाँ पे क्रैक्स थे, पोरस लैंड थी, वहां से निकल के तुरंत सडनली बाहर आ गया। नेक्स्ट, दैट इज जियोथर्मल हीट पंप। जियोथर्मल हीट पंप की तरह मदद से हम इसको भी कर सकते हैं। नाउ यूजेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज डायरेक्ट यूज एंड इनडायरेक्ट यूज, कि हम डायरेक्टली कैसे यूज करें, इनडायरेक्टली कैसे यूज करें, दोनों चीजों को। नाउ डायरेक्टली यूज अगर हम बात करें, जियोथर्मल एनर्जी को हम डायरेक्ट यूज करें, so you can see the two diagrams I have given you in this PPT. Just carefully observe the pattern of flow of water and the seasons. Is it visible you? Winters में this is the phenomena जो हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, in summers में ये हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, then I will explain. देखो जो अर्थ का जो टेम्परेचर है दैट इज 18 डिग्री, एंड यहाँ पर भी 18 डिग्री फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है, बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली रहता है ज्यादातर इतनी डेप्थ में जाके।
हमने लिया एग्जाम्पल फॉर विंटर्स। विंटर्स में क्या हो रहा है, वी नीड टू हीट अप आवर हाउसेस। हीट हमें देनी है, यहाँ पे गर्म रखना है इसको, टेम्परेचर बढ़ाना है इसका। तो एम्बिएंट टेम्परेचर कितना होगा, एम्बिएंट टेम्परेचर कम होगा, सपोज 10 डिग्री है, यही तो होगा कि नहीं होगा। सर्दियों में आपके जो Yes, sir. एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 10 से भी बिलो चला जाता है आपके नॉर्थ इंडिया में। तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ सिर्फ 10, और आपका जो ग्राउंड का टेम्परेचर इज 18 डिग्री। सो यू हैव रफली 8 डिग्री का जो है वेरिएशन है। अगर आप 8 डिग्री भी अगर यहाँ प्रोड्यूस कर सको हीट, तो आपको कितना राहत मिलेगी सर्दी से। आप अपने अंदर बैठे हो 18 डिग्री में और बाहर सर्दी है ठंड की 10 डिग्री की। सो व्हाट यू कैन डू, आपने जो पानी था या कोई और फ्लूइड लिया, वर्किंग फ्लूइड लिया, आपने उसका जो है वहां पे पूरा पाइपलाइंस बिछाई अंदर अपने कमरे में, और उसके ऊपर फैंस लगा दिए, वहां से अपने पानी सर्कुलेट किया, एंड दैट पानी विल कूल डाउन टू द एम्बियंट। उसको आप लेके गए ग्राउंड में, आपने एक हीट एक्सचेंजर्स लगाया, यहाँ पे हीट थी ग्राउंड की, इट स्टार्ट्स टू हीट अप, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, हीट जा रही है इसके अंदर, एंड देन ये पानी वापस आके आपके यहाँ पे आया, फ्लो किया दूसरी तरफ से। तो जो हीट इसने पानी ने यहाँ से ली थी ग्राउंड से, वो इसने यहाँ पे डिस्चार्ज कर दी, तो आपका जो टेम्परेचर था रूम का बढ़ गया। सो दिस इज द डायरेक्ट यूज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। सिमिलरली ये तो टेम्परेचर 18 डिग्री है, लेकिन आपका गर्मियों में यहाँ 30 दिया हुआ है, हमारे नॉर्थ इंडिया में तो 45 तक पहुंच जाता है। तो आप देखो, अगर 40 भी लोगे तो यू हैव 22 डिग्री का डिफरेंस है, तो आप हीट रिजेक्ट कर सकते हो आप अर्थ में। सिमिलर ये प्रोसीजर, जहां आप पहले हीट ले रहे थे अब आप हीट दे रहे हो। सो यू कैन डू दिस, ठीक है, टू मेंटेन सुटेबल climate conditions in your house using your geothermal energy. Is that clear? Hot springs use as spas. आपने देखा होगा कई सारे एरियाज ऐसे हैं, हिली एरियाज, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं लोगों की, लेकिन वहां पे जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, कुछ जैसे मंकीज हो गए, वो वहां पे सोना टाइप में नीचे से पानी आ रहा होता है गरम गरम, उसमें वो बाथ ले रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे भी था, अरावली में सोना बाथ था, हॉट स्प्रिंग था यहाँ पे, अभी तो है नहीं, पहले था। सो हॉट वाटर यूज टू कम आउट फ्रॉम दैट स्प्रिंग, ठीक है, तो वो एक स्पा टाइप में हो गया। दूसरा इसका डायरेक्ट यूज क्या है, हीटिंग द वाटर एट फिश फॉर्म्स, जो आपके फिश पॉन्ड्स होते हैं उनको भी एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, उससे बिलो आपके अगर पानी का टेम्परेचर जाएगा देन फिश स्टार्ट्स टू डाई। सो उसके लिए अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज वेरी वेरी हाई फॉर वाटर। अगर आप इतनी एनर्जी लगाओगे तो आपका कोई भी सोर्स अगर आप लोगे तो उसका अमाउंट जो होगा फ्यूल का वो बहुत ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करोगे तो वो भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी। तो हमारे पास अगर इस तरह से कोई फैसिलिटी अवेलेबल है देन वी कैन यूटिलाइज दैट थिंग। ओके, प्रोवाइडिंग हीट फॉर बिल्डिंग्स, जो हमें दिया हुआ है दिस, मैंने दिखाया है आपको ये डायग्राम से कि आप कैसे आप बिल्डिंग्स को प्रोवाइड कर सकते हो। ये तो एक डायरेक्ट मेथड हो गया, और भी आप दूसरे मेथड से भी लगा सकते हो। रेजिंग प्लांट्स इन ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस के अंदर आप टेम्परेचर राइज करना चाहते हो, वहां भी आप ये चीज कर सकते हो, बिकॉज जितने भी माउंटेन एरियाज हैं वहां पे टेम्परेचर कम ही रहता है, और यू कैन एक्सप्लोर दिस जियोथर्मल एनर्जी ओवर देयर। प्रोवाइड्स हीट्स टू इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को भी आप प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ से हीट, राइट? इज दैट क्लियर? Yes, sir. नाउ इनडायरेक्ट यूज अगर हम बात करें तो जियोथर्मल एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी के इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, वी आर कन्वर्टिंग द थर्मल एनर्जी इनटू सम मोर यूजफुल वे ऑफ एनर्जी, मे बी इलेक्ट्रिसिटी। सो फॉर दैट वी कैन यूज अ सिंपल पावर साइकिल। पावर साइकिल क्या, रैंकाइन पावर साइकिल का यूज करें, ये कोई और साइकिल यूज करें जो भी हमें सुटेबल है उस एरिया में। सो यू कैन सी दिस इनडायरेक्ट यूज द स्टीम फ्रॉम दैट हॉट रॉक्स। ये आपका ऊपर जो है लैंड है, देन नीचे नीचे जाओगे देर हॉट रॉक्स जो है वहां पे, और रॉक्स के नीचे योर मोल्टन मैग्मा कोर में आपके अर्थ में। तो उस कोर की वजह से आपके जो रॉक्स हैं वो हीटअप हो रहे हैं, और हीटअप होने की वजह से जो उसके ऊपर वाटर टेबल है वो हीटअप हो रही है। सो आप क्या कर रहे हो, वहां से स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो यूजिंग इट टू स्पिन द टर्बाइन, और बाद में उसको आप वहीं पे रिलीज कर रहे हो वाटर टेबल में उस पानी को कंडेंस होने के बाद। सो इन दिस वे द
the turbine is coupled to your generator and you can use it for electricity generation. Now electricity generations की बात करें, there are three type of power plants, that is dry steam power plants, flash steam power plants and binary cycle power plants. Dry की हम बात करें, that the steam is coming is dry saturated having dryness fraction equal to 1 and we are using it, that steam to spin our turbines, and that turbines are coupled to a generator and we are using a very huge amount of electricity from this process. Right, you can see this figure. Okay, whole process is same, just like your Rankine cycle, just the source of energy has changed. Now some points regarding your dry steam power plant. So first one is the oldest type of geothermal power plants होते हैं जो, that is dry steam power plants. Then geothermal reservoirs containing pure steam is required. Pure steam is required means dryness fraction is 1. Okay, dry steam का मतलब यही है. Pure dry steam drives turbines and where rare type of geothermal power plants कहाँ पे हैं? California, Italy and Japan. Okay, so California is in your North America. Italy and Japan, you know, is a place where seismic activities are very common and have active volcanoes also surrounded by the oceans. Okay, now next type of plant, that is flash steam power plant. In this we are using a primary and a secondary, two type of working fluids, because यहाँ से जो heat ले रहे हैं maybe of that not sufficient to produce dry saturated steam, but we have to run that system on a critical temperature levels, so we can use another type of material that will provide you the same properties. So for that we are using the primary जो आपकी cycle है is brine in this, means water plus salt, so that has a very high specific heat. It can harness more and more amount of heat from that molten material available or the temperature available below the crust. Okay, and then we are using secondary fluids as a condensed isopentane. Isopentane we are using for the secondary cycle, right? Rahul Singh, roll number 34. Rahul Singh, roll number 34. Rahul Singh, roll number 34. Am I audible? Please reply. सर माइक ऑफ है उसका. वो इतना लेट क्यों है उससे पूछो. माइक ऑन नहीं है सर उसका. Okay, he will be marked late today. So flash steam power plant की बात करें, commonly used geothermal power plants हैं, and the geothermal reservoirs containing both hot water and steam is required. Now pressure changing system is required और operate कहाँ हो रहे हैं? हवाई, नवाडा, Utah and some other plants. ठीक है. Now again third type, that is your binary cycle. बाइनरी साइकिल हमने उसमें भी पढ़ी थी, वेपर प्रेशर में जो हम पढ़ते थे, बाइनरी वेपर साइकिल, जहाँ पे हम एक साइकिल में अपना वाटर यूज कर रहे थे और दूसरी जो हमारी प्राइमरी साइकिल थी उसमें हम यूज कर रहे थे मरकरी. इफ यू कैन रिकॉल दैट थिंग, बाइनरी साइकिल हमने पढ़ा था, कंबाइंड बाइनरी वेपर साइकिल. यस,
याद कर पा रहे हो? यस, भूल जाते हो तुम, रिवाइज करते नहीं हो। इस तरह से हमने वेपर साइकिल नहीं पढ़ी थी। और एक हमने ये पढ़ी थी ऊपर ये वाली। ये ऊपर वाली जो थी Written. ये थी आपकी मरकरी की। ब्रेटन मरकरी। बस समझ जाओ मरकरी थी, HG लिख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका जो कंडेंसर था वो इसका बॉयलर था। ये थी आपकी रैंकाइन साइकिल। इन दोनों को हम पढ़ते थे कंबाइंड फॉर्म में। तो यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड्स था इसका था मरकरी और इसका था पानी। ठीक है, तो हो क्या रहा था, यहाँ का जो कंडेंसर था वो एक हीट एक्सचेंजर लगा रखा था, जो एक्चुअली में आपकी जो वेपर, ये आपकी रैंकाइन साइकिल था, इसको हीट एक्सचेंज करवा रहा था यहाँ से। समझे कि नहीं समझे? तो सिमिलरली यहीं पे प्रोसेस हो रहा है। दैट इज प्राइमरी में तो आपका यहाँ पे प्रोडक्शन वेल एंड यहाँ पे हीट एक्सचेंजर। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। एंड आपका जो ये सेकेंडरी साइकिल है, यहाँ पे आपका दूसरा वर्किंग फ्लूइड है और यहाँ से पूरा हीट एक्सचेंज लेके ये चल रहा है। ये सिमिलर है, इसके पूरा वो नहीं है जो इसमें था। ठीक है, लेकिन बाइनरी मींस दो साइकिल कंबाइंड है यहाँ पे, इसलिए बाइनरी। ओके, Yes, sir. so does not use steam directly to spin turbines, only the heat of underground water is used. ठीक है, vaporized hydrocarbons are used to spin the turbine, and the hydrocarbons having lower boiling points such as isopentane, isobutane and propane can be used. No harmful gases is entitled to atmosphere because the underground water is never disclosed to outside. क्योंकि वहां पे पूरी जितनी भी आपका पानी जो फ्लो कर रहा है वो वहीं से वहीं जा रहा है, वो एक्सपोज हुआ ही नहीं, हार्मफुल गैसेस आएंगी नहीं उसके कॉन्टेक्ट। दैट्स द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड पावर प्लांट्स। ठीक है, सो ये आपका टर्बाइन एंड जनरेटर है, इसको क्या जरूरत है देखने की, आपको देख चुके हो काफी डिटेल में, हम इसको पढ़ चुके हैं। ना कॉस्ट की बात करें, जो आप डायरेक्टली अगर इस्तेमाल करते हो जियोथर्मल एनर्जी को, दैट विल बी मच चीपर देन अदर एनर्जी सोर्सेज, एंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिपेंड अपॉन द सर्टेन फैक्टर्स। पहला, टेम्परेचर एंड डेप्थ ऑफ योर रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज दैट इज स्टीम, लिक्विड, मिक्स एसेट्रा, अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ रिसोर्सेज, साइज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज हाई, but after certain time period the cost of electricity becomes comparable to other resources of energy. ठीक है, बस इतना फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। these are certain areas where this energy is can be easily harnessed and available, because जहां पे आप होगी एनर्जी तभी तो वहां से ही तो आप ले पाओगे। so these are the areas, green shaded areas, and you will find these are माउंटेनियस एरियाज, हिली एरियाज हैं जहाँ पे भी मोस्टली, जहाँ पे फॉर्म ऑफ एनर्जी आ रही है, अवेलेबल है। ओके, ओके, सो जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया, जियोथर्मल, ओह सॉरी, geothermal provinces are estimated to produce around 10,000
600 megawatt of power. तो experts are confident only to the extent of 100 megawatt. ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इतना हमारे पास पोटेंशियल है, बट वी कैन यूटिलाइज 100 मेगावाट पावर कंजप्शन कैपेसिटी ओनली. सो जियोथर्मल प्रोविंसेस इन इंडिया अगर हम बात करें तो हिमालयन रीजन्स जितना भी है, सहानाज है, वेस्ट कोस्ट है, कैम्बे और सन नर्मदा तापी, दीज आर द रिवर्स जो यहाँ से हैं, इनका कुछ एरियाज है, गोदावरी एंड महानदी. ओके, now coming to the advantages of geothermal, available all around the year, पूरे साल 365 दिन अवेलेबल रहती है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे सोलर एनर्जी है दिन में है रात में नहीं है. इट्स अवेलेबल 24 आवर्स. डज नॉट इन्वॉल्व एनी कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल की कोई कंबशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्यूल जलाने की जरूरत नहीं है. वेदर पे इंडिपेंडेंट है, कुछ भी वेदर हो इससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सर्दी हो गर्मी हो, इट डजंट डिपेंड ऑन दैट. क्लीन रिसोर्स है, वेरी लिटिल एमिशंस और ओवरऑल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स इसमें बहुत कम है. इकोनॉमिकली साउंड अल्टरनेटिव्स, द फ्यूल इज फ्री. ठीक है, एंड रेट जो है किलोवाट पर आवर लाइकली टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव. ओवरऑल जियोथर्मल एनर्जी इज अ सुटेबल रिसोर्स. डिसएडवांटेज की बात करें, नॉट वाइड स्प्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी, हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कैन रन आउट ऑफ स्टीम, मे रिलीज हार्मफुल गैसेस. ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं और अर्थक्वेक्स की. ट्रांसपोर्टेशन करना पॉसिबल नहीं. दूसरा, अर्थक्वेक प्रोन है. एंड रिलीज ऑफ मैनी हार्मफुल गैसेस, मतलब जो आपके अर्थ के क्रस्ट में ऐसा नहीं है सिर्फ हीट है, बहुत सारे गैसेस ऐसी हैं, सल्फर है ना, और आर्सेनिक है, बहुत सारे ऐसे हार्मफुल गैसेस अदर भी हैं जो हमें हेल्थ हैजार्ड्स हमारे लिए कर सकती है. तो वो भी कम बाहर आएंगी अगर हम उसकी बात करें. जो आपके कई बार जो हॉट पॉन्ड्स थे उनमें सल्फर कंटेंट मिलके आता था, तो कहते हैं उनके नहाने से आपके जो बोलते हैं ना स्किन जो प्रॉब्लम्स थे वो हट जाती थी, बिकॉज देयर इज अ सल्फर कंटेंट इन दैट वाटर. और उसके नहाने से जो आपके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो आप एलर्जी कर रहे थे आपकी बॉडी पे, दे वेनिसेस. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन की कंक्लूजन में जाके, सो इट्स हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट. सल्फर अगर बाहर आएगा, इट कंबाइन विद रेन वाटर एंड प्रोड्यूसेस एसिड रेन. वो बहुत ज्यादा जो है लिथियल है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए. ओके, बिकॉज इट डैमेजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. अब कंक्लूजन की बात करें तो जियोथर्मल heating systems can replace fossil fuels heating systems in particular areas, mainly in the hilly areas, and the annual cost of common heating purposes can be reduced by more than 60%. Now, continued energy shortages have created added interest in geothermal energy for the power generation, and the potential exists to provide all the energy requirement in US. The geothermal energy appears to be a partial solution to our energy needs. Okay, so this is a brief introduction, or you can say, about your geothermal. Okay, I hope you understand this. If you have any query, please ask me. If anyone has any query, he or she may ask. समझ में आया जियोथर्मल? यस, सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? Any doubt? So attend to your roll call.
Abhishek, roll number 2. Abhishek. Akash, roll number 3. Akash.